बाकी लोग म्यूट हो जाइए, आवाज आ रही थी। यस सर। Today we'll start introduction to the course. As you know that we are part of biochemistry class, veterinary biochemistry. So first we'll see what is biochemistry. So the term biochemistry was first of all coined by Carl Neuber in 1903, and as you know that it is made from two words, bio and chemistry. Bio आया है बायोलॉजी से या बायोस से या लाइफ साइंस से, और केमिस्ट्री आया है केमिस्ट्री से. So you can consider it as a hybrid science, biology science of living system, whereas chemistry science of atom and molecules. So in start biochemistry, the science of atom and molecules in the living system. The Carl Neuber studied the transport of soluble chemicals in cells, which allowed for day-to-day cellular process such as respiration to be explained. So biochemistry is the study of life on a molecular level, and it is basically concerned with the chemical constituent of living cells and the reaction of process that make the cells alive. And it is defined as the branch of science that deals with the chemical basis of life. So शॉर्ट में कहिए तो बायोलॉजी को केमिकल टर्म में या केमिस्ट्री के टर्म में एक्सप्लेन करने की कोशिश होती है बायोकेमिस्ट्री में. उसमें क्या है, केमिकल कंस्टिट्यूएंट पहले हम देखेंगे और क्या क्या केमिकल रिएक्शंस सेल के अंदर या लिविंग सिस्टम के अंदर होते हैं. ब्रांचेस की अगर बात करें तो बायोलॉजी या लिविंग साइंस या लाइफ साइंस, एज वी नो दैट इट इज मेड फ्रॉम बायोस या लाइफ, और लाइफ भी कई कैटेगरी में डिवाइड हैं. आइदर इट मे बी प्लांट सेल, प्लांट लाइफ, और biochemistry related with plant is called as plant biochemistry. Whereas if the bios or biology or cell is animal cell, those biochemistry that can be applied to animal cell is called animal biochemistry, which we are concerned with. And third is microbes, microbial biochemistry, where we apply biochemistry on microbes, pathogen, bacteria, virus, etc. So if we see, there are almost 113 chemical elements on earth. The number is increasing as the discovery is being. But out of these, how many of them exist in life? So if we confine that, we find that there are around 6 primary elements that are found in living organisms. Major is carbon, second oxygen, third hydrogen, then nitrogen, phosphorus and sulfur. Apart from these atoms, there are certain ions which are found in all organisms, and major ions include calcium, sodium, potassium, chloride and magnesium. So if we see the organization of life, atom or elements, they will make simple organic compounds, monomer. These monomer, they will form polymer. They are called as macromolecules in terms of biochemistry. These macromolecules, they further make supramolecular structure, and from this organelle is formed, and several organelle will make cells, and several cells will make tissues, and several tissues will make an organism. So the major biomolecule in living system or living organism which we are concerned in biochemistry include lipids, proteins, carbohydrates and nucleic acids.
and these are basically polymers. So if you take example of lipids, the monomer is called as fatty acid. In case of proteins, the monomer is amino acid. In case of carbohydrates, the monomer is glucose or monosaccharides. Whereas in case of nucleic acids, the monomer is nucleotides. The polymer of lipid is called phospholipid. For proteins, it makes protein subunit. For carbohydrate, example is cellulose. For nucleic acid, it is DNA or RNA. They will make chromosomes, cell wall, protein complex, membrane structure, etc. So here, if you see the atomic structure, in case of carbohydrates, basically CHO, carbon, hydrogen, and oxygen. In case of lipid, also mainly carbon, hydrogen, and oxygen. In case of proteins, nitrogen is also added. Nitrogen is also found, CHON. Whereas in case of nucleic acid, apart from nitrogen, phosphorus is also found. So if you see major complex of biomolecules in cells, so biomolecules, as we have discussed, they are mainly protein, lipids, carbohydrates, and nucleic acids. So the building block for protein is amino acids, and its function is major function is structure and function. Likewise, for carbohydrates, building block is monosaccharides, and they serve as storage energy for starter use. Lipids के बिल्डिंग ब्लॉक फैटी एसिड्स हैं, ग्लिसरॉल हैं, और ये लॉन्ग टर्म स्टोरेज एनर्जी के काम में आते हैं. डीएनए और आरएनए का बिल्डिंग ब्लॉक डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड और राइबोन्यूक्लियोटाइड है. डीएनए मेनली हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन कैरी करता है, whereas RNA is basically involved in protein synthesis. अब बात करें इंपॉर्टेंस बायोकेमिस्ट्री की. तो बायोकेमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस ऐसी है कि knowledge of biochemistry is needed for all life science. Whatever even in day-to-day life, even for our living being, for our well-being. एग्जाम्पल देखिए, we take a drug, दवा लेते हैं कि हमारा फीवर डाउन हो. मोस्ट कॉमन दवा पैरासिटामॉल है. तो ये भी एक बायोकेमिस्ट्री, किसी कंपनी के बायोकेमिस्ट ने डिस्कवर किया था और ये पाया था कि ये एक लिविंग सिस्टम के एंजाइम जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस में मदद करता है, उसको ब्लॉक करती है. और प्रोस्टाग्लैंडिन्स, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर inflammatory reactions as well as they are responsible for increasing the temperature of the body for fever. Likewise, शेव करते हैं, दाढ़ी बनाते हैं. तो अक्सर शेविंग क्रीम में आपको मिलेगा, ऑर्डिनरी क्रीम में मिलेगा कि ऐसे केमिकल्स हैं, ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि स्किन को सॉफ्ट करते हैं. ये कंपाउंड्स भी डिस्कवर हुए बायोकेमिस्ट्री के द्वारा, बायोकेमिकल प्रॉपर्टी पता होने के बाद ही. लाइकवाइज नाश्ता करते हैं हम, तो उसमें कोशिश करते हैं कि सीरियल हो, विटामिन हो, जिससे कि हमारी न्यूट्रिशनल जरूरतें पूरी हों. शर्ट हम लोग पहनते हैं या पहन सकते हैं, ऐसी शर्ट आ गई पेस्ट रेजिस्टेंस कॉटन से बनी हुई है. The cotton plants were bioengineered by biochemists through the transfer of genes from bacterium into plant, so that the cotton is resistant to pests. कीड़े नहीं लगेंगे ऐसे शर्ट्स में. डे टू डे लाइफ में आप चाय पीते हैं, हम चाय पीते हैं, शुगर डालते हैं, दैट इज आल्सो ए कार्बोहाइड्रेट. वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हैं या कपड़े धोते हैं, डिटर्जेंट पाउडर का यूज करते हैं. तो उसमें भी जो केमिकल हैं, जो कंपाउंड हैं,
अभी उनकी प्रॉपर्टी भी वही है। मेजर प्रॉपर्टी डिटर्जेंट की है कि लिपिड को सॉल्वलाइज करेगा। और अगर एंजाइम बेस्ड जो आजकल इस समय सबसे ज्यादा है कॉमन, these enzymes they were developed by biochemists so that any stain caused by protein is hydrolyzed। और आदत है हमारी सोने से पहले दूध लेने की रात में, तो ये भी ऐसा है कि मिल्क में ऐसी अमीनो एसिड्स हैं जो कि ब्रेन को ऐसा मैसेज देती हैं कि हम वेल बीइंग, अच्छी वेल बीइंग महसूस होती है हमको। So all these are possible because of knowledge of biochemistry. So short में है how does biochemistry impact us? एग्रीकल्चर में इम्पैक्ट है इसका, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में है, इन्वायरमेंटल एप्लीकेशन में है, आपके लिए है वेटनरी मेडिसिन में है, जिसमें it is needed for understanding the health conditions of animals. It is used for effective treatment and diagnosis. अब देखिए डिफरेंट एरियाज ऑफ बायोकेमिस्ट्री। अगर हम बात करें जैसे डेफिनेशन की, हमने बताया आपको कि बायो एंड केमिस्ट्री, केमिस्ट्री अप्लाइड टू बायोलॉजी। दैट मीन्स वी ट्राई टू एक्सप्लेन लाइफ इन टर्म्स ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स। तो हमारा फर्स्ट फेज क्या होगा? पहला फेज तो हमको ये होगा कि जो हमारे लाइफ का यूनिट है या लाइफ है, लिविंग सेल है, उनका स्ट्रक्चर किन किन कंपाउंड से, किन किन एटम से या किन किन मॉलिक्यूल से मिलके बना हो। सो दैट इज आवर फर्स्ट फेज, आवर फर्स्ट यूनिट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोलॉजिकल मैक्रोमॉलिक्यूल्स, एंड दैट इज द स्कोप ऑफ योर यूनिट फर्स्ट ऑफ द कोर्स। आपको पता चल गया कि एक सेल में, एक लिविंग सिस्टम में कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, या प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, लिपिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं। आगे अगला टास्क हमारा है कि हाउ दे आर मेटाबोलाइज्ड, व्हाट केमिकल रिएक्शंस दे टेक प्लेस इनसाइड द सेल, इनसाइड द लिविंग सिस्टम, एंड हाउ दे आर मेड, different anabolic and catabolic process of life. That is our scope of unit 3. नेक्स्ट टास्क है या नेक्स्ट फेज है हमारी नॉलेज का बायोकेमिस्ट्री में, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। हाउ लाइफ इज रेप्लिकेटेड एंड रेगुलेटेड, सेल का डिवीजन या न्यूक्लिक एसिड का डिवीजन कैसे होता है और कैसे डिफरेंट प्रोसेसेस रेगुलेट होते हैं। बेसिकली ये आपके कोर्स में इस समय नहीं है। और चौथा एरिया है क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री। जैसा नाम है क्लिनिक, क्लिनिकल कंडीशन में जो अप्लाई हो सके। सो हाउ बायोकेमिस्ट्री कैन बी यूज्ड इन डायग्नोसिस एंड इन क्लिनिकल कंडीशंस। देखा होगा किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको यूरिन एग्जामिनेशन लिख देता है, ब्लड एग्जामिनेशन लिख देता है, ग्लूकोज पता करिए, प्रोटीन पता करिए। सो बाय सीइंग दोज वैल्यूज, हाउ दे आर ऑल बायोकेमिकल कंपाउंड्स, सो हाउ दैट कैन बी कोरिलेटेड विद ए डिजीज कंडीशन। ये स्कोप है हमारे क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री का, और वो आपका पार्ट है थर्ड यूनिट का। अब थोड़ी सी बात कर लें हिस्ट्री की, बायोकेमिस्ट्री की। बेसिकली डेवलपमेंट के लिहाज से थोड़ा सा ये नई फील्ड है, और मोस्ट डेवलपमेंट इसके हुए हैं मोस्टली 20th सेंचुरी में। लेकिन बायोकेमिस्ट्री की ओरिजिन बहुत पुरानी है, फ्रॉम द एरा ऑफ थियोफ्रेस्टस, और एक्चुअली ये इमर्ज हुआ है, ओरिजिनेट हुआ है एज ए वे टू ट्रीट डिजीजेस। थियोफ्रेस्टस ने देखा, बेसिकली केमिस्ट थे या केमिस्ट्री के साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपनी केमिस्ट्री की नॉलेज को मेडिसिन की फील्ड में अप्लाई किया और देखा कि ऑल लाइफ प्रोसेस आर एसेंशियली ऑफ केमिकल नेचर एंड डिजीजेस कैन बी क्योर्ड बाय मेडिसिन्स आर केमिकल्स आर कंपाउंड्स। तो थियोफ्रेस्टस के जमाने से ही कह सकते हैं कि बायोकेमिस्ट्री की शुरुआत होनी शुरू हुई। उसके आगे शीले और
लेवोसिए ने डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स की खोज की, ड्रग्स, प्लांट एंड एनिमल मटेरियल की। लेवोसिए ने एयर का कंपोजिशन स्टडी किया और बताया कि थियरी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। He also developed the concept of oxidation and explained the nature of restoration. That is the reason Lavoisier is considered as father of modern biochemistry. इसके बाद वोलर थे जिन्होंने यूरिया को लैब में सिंथेसाइज किया और बताया कि जो लैब में यूरिया सिंथेसाइज हुई है दैट इज ऑफ सिमिलर कंपोजिशन जो कि लिविंग सिस्टम में मिलती है, और तो और नॉन लिविंग थिंग में भी जो है वो बराबर है। तो वोलर से पहले एक कंसेप्ट था वाइटलिस्टिक थियरी का या वाइटलिज्म थियरी का, जिसमें ये था कि लाइफ से ही लाइफ की उत्पत्ति होती है या लिविंग सिस्टम में जो चीज मिलती है वो लिविंग सिस्टम में ही मिलेगी, नॉन लिविंग में नहीं मिलेगी। तो वोलर के वर्क से ये डिसअप्रूव हुआ कि वाइटलिस्टिक थियरी सही नहीं है। दैट्स व्हाई द वोलर का वर्क है दैट इज कंसीडर्ड एज ग्रेट माइलस्टोन इन द फील्ड ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड एज स्टार्टिंग पॉइंट आल्सो, कि इसके बाद ही बायोकेमिस्ट्री का डेवलपमेंट ज्यादा तेजी से हुआ। फिर इसके आगे 1950-53 में जब डीएनए की खोज हुई, डीएनए का ब्रेक थ्रू हुआ स्ट्रक्चर, तो फिर बायोकेमिस्ट्री में काफी तेजी आई। पार्सन एंड क्रिक मेड द डिस्कवरी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डबल हेलिक्स डीएनए और सेंट्रल डॉगमा वाज प्रपोज्ड दैट डीएनए information in nucleic acid or information is gene carries in one direction from DNA, which is carried to RNA, from RNA it is carried to proteins, and protein makes body. So अब अगर शार्ट में देखें मेजर अचीवमेंट्स इन बायोकेमिस्ट्री, डिटरमिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बायोमॉलिक्यूल, इलुसिडेशन ऑफ फंक्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। पहले हम स्ट्रक्चर देखें कौन कौन से बायोमॉलिक्यूल सेल में हैं, उसके बाद उनके फंक्शन, फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की खोज हुई, उसके बाद आइसोलेशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फंक्शन ऑफ मेजर इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेल्स, देन एनालिसिस एंड ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एंजाइम्स, डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवेज की डिस्कवरी और उनके रेगुलेशन की डिस्कवरी, मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर की डिस्कवरी, हार्मोन एक्शन की डिस्कवरी, एज वेल एज डिफरेंट डिजीजेस की मॉलिक्यूलर बेसिस की डिस्कवरी। ये तो है अगला स्टडी या बायोकेमिकल प्रोसेस। ये बहुत जानने की जरूरत नहीं कैसे हम स्टडी करते हैं। पहले होल एनिमल लेवल पे आप कह सकते हैं तो टिश्यू स्लाइस काटेंगे, होमोजिनेट बनाएंगे, सेल ऑर्गेनेल को सेपरेट करते हैं, सब फ्रैक्शनेशन होगा, आइसोलेशन कैरेक्टराइजेशन ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे और क्लोनिंग ऑफ जीन। ये आपको मतलब ज्यादा नहीं है। अब आगे आइए, व्हाट डू वी स्टडी इन बायोकेमिस्ट्री। वही हम लोगों ने बात किया था अभी, केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ लाइफ, कौन कौन से केमिकल कंस्टिट्यूएंट है सेल्स के, उनकी मेटाबॉलिज्म, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, फिजियोलॉजिकल बायोकेमिस्ट्री। बेसिकली इसमें वो हैं जो फिजियोलॉजी से प्रोसेस रिलेटेड जितने भी प्रोसेस हैं लाइक रेस्पिरेशन, इनमें जो बायोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व है दैट इज कॉल्ड फिजियोलॉजिकल बायोकेमिस्ट्री। क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री हम लोगों ने डिस्कस किया ही कि बायोकेमिस्ट्री रिलेटेड विद क्लिनिकल कंडीशंस दैट हेल्प्स इन डायग्नोसिस। अब अगर बात करें कि लाइफ की या सेल की केमिकल कंस्टिट्यूएंट की, तो पहले भी हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं, लिपिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, एंजाइम्स हैं, विटामिन हैं, मिनरल्स हैं। विटामिन और मिनरल्स को आप लोगों के कोर्स में यहाँ से हटा करके न्यूट्रिशन कर दिया गया है, वहाँ भी आपको पढ़ना, वहाँ इसकी ज़्यादा वो
रिलेटिविटी है। हमारे लिए 4 है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड्स, एंजाइम्स। तो एज आई टोल्ड यू, फिजियोलॉजिकल बायोकेमिस्ट्री में क्या स्टडी हम करते हैं? डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, हीमोग्लोबिन एंड पोरिफारिन्स, प्लाज्मा प्रोटीन्स। बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन भी कुछ पार्ट फिजियोलॉजिकल केमिस्ट्री है, बिकॉज ऑक्सीडेशन है, रेस्पिरेशन है, इसमें एनर्जी रिच कंपाउंड है। बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन है, रेस्पिरेटरी चेन है। मेटाबॉलिज्म पार्ट में मेटाबॉलिज्म ऑफ ऑल बायोमॉलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, मिनरल्स, हार्मोन्स, न्यूक्लिक एसिड, हीमोग्लोबिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, जीनोबायोटिक्स, इंटीग्रेशन। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में वी स्टडी बेसिकली न्यूक्लियोटाइड्स एंड प्रोटीन्स, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जीन थेरेपी, जीनोम प्रोजेक्ट्स एटसेट्रा। क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री या क्लिनिकल केमिस्ट्री में वी स्टडी इंसुलिन, डायबिटीज मेलाइटस, लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी, फ्री रेडिकल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स, एज वेल एज वाटर इलेक्ट्रोलाइट एंड एसिड बेस बैलेंस। तो जब इनका नंबर आएगा तब इसमें पढ़ेंगे। अब बात करें वाई बायोकेमिस्ट्री स्टडी, वाई टू स्टडी बायोकेमिस्ट्री, व्हाट आर कैरियर्स। तो थोड़ा सा शार्ट में हम डिस्कस करेंगे इसको, कुछ एरिया। तो जो जिसको भी बायोकेमिस्ट्री की जानकारी हो उसके लिए तमाम फील्ड हैं। वेटनेरियन के अलावा एनालिटिकल केमिस्ट के रूप में काम कर सकता है, बायोमेडिकल स्टूडेंट साइंटिस्ट के रूप में काम कर सकता है, हेल्थ केयर साइंटिस्ट के रूप में काम कर सकता है, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट के रूप में काम कर सकता है, क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट के रूप में काम कर सकता है, फोरेंसिक साइंटिस्ट के रूप में काम कर सकता है, मेडिसिनल केमिस्ट के रूप में काम कर सकता है, नैनो टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में काम कर सकता है, इवन फार्माकोलॉजिस्ट के रूप में भी काम कर सकता है। एक फिजिशियन का एसोसिएट भी हो सकता है, रिसर्च साइंटिस्ट के रूप में भी काम कर सकता है, टॉक्सिकोलॉजिस्ट के रूप में भी काम कर सकता है, और साइंटिफिक लेबोरेटरी टेक्नीशियन के रूप में भी काम कर सकता है। व्हाट आर दी इंडस्ट्रीज आर प्लेसेस, ये तो हो गया रोल। अगर प्लेस की बात करें तो रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम कर सकता है, यूनिवर्सिटीज में काम कर सकता है, गवर्नमेंट एजेंसीज में काम कर सकता है, नेशनल हेल्थ सर्विस में काम कर सकता है, इवन फॉरेंसिक साइंस सर्विसेज में भी बायोकेमिस्ट्री का रोल है। इन्वायरमेंटल एजेंसी में काम कर सकता है, फूड इंडस्ट्री में काम कर सकता है, फार्मास्यूटिकल्स में काम कर सकता है, और बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में काम कर सकता है। ये हो गए इम्पोर्टेंस बायोकेमिस्ट्री की। अब और अगर बात करें कि नोबेल प्राइज की और बायोकेमिस्ट्री की, तो जो नोबेल प्राइज है वो बायोकेमिस्ट्री का अलग से नहीं दिया जाता है, केमिस्ट्री के अंडर में दिया जाता है। और जब से नोबेल प्राइज शुरू हुआ है तब से लेके आज तक लेटेस्ट मोर देन 80 to 90% नोबेल प्राइज हैज बीन रिलेटेड विद बायोकेमिस्ट्री। प्योर केमिस्ट्री के नहीं है, प्योर केमिस्ट्री के बहुत कम ही मिले हैं। और लेटेस्ट जो अभी इस साल मिला है, इमैनुअल कारपेंटियर एंड जेनिफर ए डूडना को, वो भी जो है फॉर दियर डेवलपमेंट इन द मेथड ऑफ जीनोम एडिटिंग। हो सकता है आप लोगों ने सुना हो, क्रिस्पर, CRISPR Cas9, क्रिस्पर Cas9 डीएनए का इन्होंने खोज की है। और ऐसा मेथड है कि किसी भी जीनोम को, किसी भी सेल के डीएनए को या न्यूक्लिक एसिड को मनचाहे तरीके से हम एडिट कर सकते हैं, काट सकते हैं, फिर जोड़ सकते हैं। तो ये एक बड़ी डिस्कवरी है और इसका खोजा जा रहा है कि डिजीज ट्रीटमेंट में काफी रोल है। बाकी आप खाली लिस्ट के लिए हमने आपको दिखाया, 18 में भी मिला है, बायोकेमिस्ट्री में 17 में भी मिला है, 15, 16, 17, 18 लगातार बायोकेमिस्ट्री मिला है, 19 वाला केमिस्ट्री में गया है, 15 के बाद फिर 12 में मिला है बायोकेमिस्ट्री का, फिर 9, 8, 6, 4, 3, 2, इसकी ज्यादा हमने नहीं बताया है। 97, 93, 89, 88, 87, 80 ये है। तो ये है आपका, एक लाइन से मैं एंड करूंगा आज की क्लास। Wherever there is a new discovery in biology, biochemistry must be there. लाइफ साइंस में अगर कोई भी रिसर्च होनी है